Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize, and this is the maths revision video of week 3. So the content of week 3 was the quadratic equation and SSE. So without wasting any time, let's get started. So the first thing is different forms of equation of a straight line. So the general form of a straight line is ax plus by plus c is equals to 0, where a is the coefficient of x. Coefficient means partner. तो x का partner a है. The coefficient of y is b and c is the constant. Now the very important formula is a slope point form. Basically we will be giving the slope and one point on the line, and you have to write the equation of that line. So this is the formula which you will be using. Now by using this formula, we will be deriving this, and this. So let's begin. So the slope intercept form on the y-intercept means that we have been given the information of the y-intercept. Therefore, I have been given this distance which is, let's say, c. So यार ये point का value क्या हो जाएगा 0, c. Okay, and slope is given as m. So the tan theta is nothing but m. Now using this equation, let's derive the slope intercept form on y-intercept. So y minus c is equals to m x minus 0. So basically instead of x naught and y naught, I have taken 0, c. So what I will get mx plus c. Bingo, we got the answer. Now let's derive the slope intercept form on the x-axis. Now here I have been given a point on the x-axis. I have been given the x-intercept which is, let's say, d. तो यार इस point की value क्या हो जाएगी d, 0. So now the equation which I will be writing is y minus 0 is equals to m, the slope of the line, x minus t. And bingo, again we got this equation. Now let's talk about the 2-point form. So here I have been given 2 points instead of a point and a slope. तो यार point की जगह point तो है ही, but slope की जगह मुझे दूसरा point दे दिया है. So here I have to first derive the slope. तो slope क्या होता है delta y upon delta x. Therefore the slope will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. So instead of this formula, all you have to do is, instead of m, put this value and you will get the 2-point form of a straight line. I hope you got all the formulas. Everything is easy. All you have to remember is, बाकी तो derive हो जाएगा, आपको क्या क्या याद रखना है? General form, slope point form and the intercept form, where a is the x-intercept, b is the y-intercept. So x upon a plus y upon b is equals to 1. Now let's move further. Given two straight lines, this and this, तो मुझे parallel और perpendicular lines की condition निकालनी है. So before telling you the condition, मुझे आप लोगों को एक बहुत ही basic सी बात बतानी है. तो यार मेरे पास एक line है ax plus by plus c1 is equals to 0. अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल होगी. तो अगर पैरेलल होगी तो यार इसके जो x और y के कोफिशिएंट होंगे ना वो सेम होने चाहिए. पैरेलल होगी तो स्लोप बराबर होता है, और स्लोप की इक्वेशन क्या होती है माइनस बी बाय ए. इस फॉर्मेट में स्लोप की इक्वेशन ये होती है. देयरफॉर a and b has to be the same in both the lines who are parallel. तो इस लाइन के पैरेलल जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन ये होगी. तो बेसिकली बस एक कांस्टेंट बदलेगा, बाकी जो a और b which are the coefficients of x and y, they have to be same to be parallel to each other. अब परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन बनाते हैं. तो अगर इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन चाहिए तो क्या होता है ना, उसमें हम पहले एक्सचेंज करते हैं कोफिशिएंट को. तो y का कोफिशिएंट जाएगा x के पास एंड x का कोफिशिएंट जाएगा y के पास. और यार कांस्टेंट तो बदलता ही है और साइन भी चेंज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिकुलर लाइन टू दिस लाइन. सो ऑल यू हैव टू डू इज कि पैरेलल में कांस्टेंट चेंज होगा
और परपेंडिकुलर में कोफिशिएंट्स एक्सचेंज होंगे और साइन भी उल्टा हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब अब हम एक बार ना इन इक्वेशंस को जो हमें गिवन है इन्हें एक बार जज करते हैं। तो अगर पैरेलल होंगे तो यार a1 इंटू बी टू शुड बी इक्वल टू a2 इंटू b1. So a1 into b2, that is ab, must be equal to a2 into b1. Bingo, this is correct. So this is the condition for two lines to be parallel. और मैंने आप लोगों को इसका लॉजिक बता दिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंडीशन याद नहीं रखनी है तो बेशक मत रखो, क्योंकि मैथ्स इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू रिमेंबर। सो आप डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उसे ध्यान में रख लो, उसी से आराम से क्वेश्चन बनेंगे। और अब चलो इन दोनों कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली। सो व्हाट इट इज सेइंग, a1 into a2, that is a into b, a1 into a2 is equals to minus of b1 into b2. So b1 is b and b2 is minus of a. So that means AB is equals to AB. Bingo, we did it correct. So I hope you got this second point as well. Now these 2 points are the complete formula based. So this is a theory which you should remember, and these are very very important point. So the distance of a point from a line is, उस point को line में satisfy कर दो upon under root a square plus b square. And the distance between two parallel lines are the difference between the coefficient, the constants upon under root of a square plus b square. So that is the formula of a distance. Distance में याद रखना, distance की हम जब भी बात करते हैं तो वहां under root लगता ही है denominator में, okay? Now comes the most important topic of this week, and that is the SSE. And I am assuming that many of you are not from the engineering background, so this might be new for you. So what do we understand by SSE? ध्यान से समझते हैं. That is the sum squared error. So basically here we are talking about a error. तो यार मेरे पास दो वैल्यूज है. एरर क्या होती है? एक्चुअल वैल्यू माइनस द एक्सपेक्टेड वैल्यू, द थियोरेटिकल वैल्यू. सो दिस इज माय एरर. उसका जब मैं स्क्वायरिंग करूं तो ये बन जाएगा, और ऐसी जितनी भी टर्म आ रही है जब उन सबका मैं सम कर दूंगी, सो दैट विल बी टर्म्ड एज SSE. सो SSE इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन. डेविएशन का स्क्वायर का सम होता है SSE of a predicted linear model from the actual data set. तो यार एक्चुअल डेटा सेट और प्रिडिक्टेड डेटा सेट का जो डिविएशन होता है, उसका जो स्क्वायर होता है, जब हम उसका सम करते हैं, दैट इज नोन एज दी SSE. नाम से ही इसकी पूरी की पूरी फॉर्मूला हम डिराइव कर पा रहे हैं. अब न्यूमेरिकली इसका फॉर्मूला भी समझ लेते हैं. दो ऑलरेडी मैंने लिख दिया, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन थी, यहाँ फॉर्मूला था. मैंने डेफिनेशन के थ्रू ही आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है. सो न्यूमेरिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमें एक लाइन गिवन है, y is equals to mx plus c. तो यार फॉर एग्जाम्पल मुझे y की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो एक्चुअल वैल्यू मुझे दी गई हैं. बट फॉर एग्जाम्पल मुझे x भी गिवन है, तो यार उसकी मैं थियोरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कैलकुलेट कर पाऊंगी, एंड उसकी वजह से आई कैन कैलकुलेट दी SSE. So basically yi is the actual value and this is the expected value. When I take the deviation and then the squaring and then the sum, that is known as the SSE. अगर आपको एक बार के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला जो कि गिवन है PDF में वो नहीं समझ आया, all you have to keep in mind for SSE is this very formula. Actual minus expected का whole square, total summation. So this is the formula of SSE. So the last point of sum squared error is to find the best fitting line for the given data set by minimizing the SSE. तो यार SSE का one of the most important use क्या होता है? लाइन को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी वाली बेस्ट है. मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक ग्राफ गिवन है और उसमें कुछ लाइनें ड्रॉ की गई हैं. एक ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, एक ये वाली लाइन हो गई, एक
ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, मुझे ये पॉइंट्स गिवन है। अब मुझे बोला गया है कि 1, 2 और 3 में से कौन सी लाइन सबसे ज्यादा बेस्ट फिट कर रही है। तो बेसिकली आई हैव बीन गिवन दीज पॉइंट A, B, C एंड D, और इन चारों पॉइंट के लिए कौन सी सबसे अच्छी लाइन है, मतलब कि कौन सी ऐसी लाइन है जो मैक्सिमम पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, और जिन्हें वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो उनके बहुत पास आनी चाहिए। सो दैट लाइन विल बी दी बेस्ट फिट लाइन। तो यार ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा अगर हमारे पास SSE वाला मेथड नहीं होगा। So SSE is used to find the best fitting line for the given data set. Now I have the question for the same, so let's do it. So question हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SSE बहुत ही important topic है and I am sure कि इसका एक question आना ही है. Okay. Now before doing it, let's first understand what do we mean by dependent and independent variable. So when I'm writing this formula, तो इसमें एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है। तो इसमें जो x वाला है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड ये जो y वाला है दैट इज डिपेंडेंट। तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए y अपने आप को चेंज कर रहा है, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है तो मैं y को क्या लिख सकती हूँ कि इट इज अ फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द x। तो अब ये जो x है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो y है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इजी। अब यार ये ध्यान रखना कि जो सम स्क्वायर्ड एरर होते हैं हमारे दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ लेट्स टेक द लाइन फिटिंग एग्जांपल। तो यार हमें ये टेबल गिवन है, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल टेबल, या फिर मैं ये क्या बोलूँ एक्चुअल वैल्यूज है। तो एक मुझे फंक्शंस गिवन है, मतलब मुझे लाइनें गिवन है और मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी लाइन बेस्ट सूट करती है, बेस्ट फिट लाइन कौन सी है। तो यार जिसका सबसे कम एरर होगा, एक्चुअली SSE दैट इज द सम स्क्वायर्ड एरर, जिसका सबसे ज्यादा कम होगा वो सबसे ज्यादा फिट करेगी लाइन। तो आई हैव बीन गिवन 4 लाइन्स एंड 1 डेटा सेट एंड मुझसे पूछा गया है कौन सा लाइन इस डेटा सेट को बेस्ट फिट करती है। तो यार एक बात ध्यान रखो कि मुझे हर एक लाइन के लिए SSE कैलकुलेट करना है। तो किसी एक लाइन का मैं आपको कैलकुलेट करके समझा देती हूँ, बाकियों का आप कर ही लोगे। ओके, सो यार ध्यान रखो कि T मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, FT मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, and for t is equals to 1, 2, 3, 4, 5, I have been given the experimental values of ft that are 1, 4, 3, 8 and 7. But since I have been given the equation as well, I can easily write the theoretical value. So this is the theoretical value. तो यार जब मैं t की वैल्यू 1 रख रही हूँ, what I will get? I will get 3. जब t की वैल्यू मैं 2 रख रही हूँ, I will get 4. जब t की वैल्यू मैं 3 रख रही हूँ, I will get 5. जब t की वैल्यू मैं 4 रख रही हूँ, I will get 6. And when I'm keeping t as 5, I will get 7. So these are the theoretical value and these are the experimental value. Please have a note that these are different, right? There's some difference. All I have to do is now calculate the SSE. SSE क्या था? Error calculate करो. तो 3 minus 2 कितना हो जाता है? एरर कैलकुलेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। 3 एक्चुअली 1 माइनस 2, एक्चुअल माइनस एक्सपेरिमेंटल, एक्चुअल माइनस थियोरेटिकल, ये फॉर्मूला होता है ना। एक्चुअल इज द एक्सपेरिमेंटल वन एंड थियोरेटिकल मीन्स जिसको मैं इक्वेशन से डिराइव की हूँ, जो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दी वर्ड्स। तो 1 minus 3 will be minus 2, 4 minus 4 will be 0, 3 minus 5 will be again minus 2, 8 minus 6 will be 2, 7 minus 7 will be 0. So this was the error. पर SSE क्या होता है? Error. Then I do the squaring. तो यार अब इन एरर्स की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 0 का स्क्वायर इज 0। तो मैंने स्क्वायरिंग भी कर ली। अब फाइनली मुझे करना है सम इन सब का। So what I will get 12 as the SSE value of function t plus 2. बस इतनी आसानी से आपको इस वाले फंक्शन और इस वाले फंक्शन का भी कैलकुलेट करना है। So finally the answer which you will be getting is this.
So for t plus 2 we got 12. जब आप t के लिए कैलकुलेट करोगे SSE आएगा अपना 24, 2t के लिए आएगा 19 एंड 2t plus 2 के लिए आएगा 67. तो यार जो भी मिनिमम SSE वाली लाइन होगी वो बेस्ट फिट वाली लाइन होगी. तो मेरी जो बेस्ट फिट लाइन है इन चारों में से दैट इज t plus 2. So this is the answer. So yeah, that's all in this revision video. I hope that you got something out of it. And if you like the video, then do subscribe to the channel and comment down below to appreciate me. Okay. Thank you so much for watching.